Okay, assalamu alaikum students. It's 8:28. So टाइम जो है क्लास का वो 3 मिनट ओवर हो चुका है. We have still waiting for students. बहरहाल अब जो आएंगे वो आते रहेंगे. Requesting you to turn on your computer cameras please. आप लोग अपने कैमरे ऑन करें ताकि मैं आपकी अटेंडेंस ले सकूं. Thank you. The last time it was a very detailed introduction, but that's part of our syllabus. As I told you that it is in our chapter number 4 for the book we refer, that's matter. केमिस्ट्री मैटर की जो किताब हमने आपको रेफर की है उसके चैप्टर नंबर 4 में सारी बातें हैं. द एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. लास्ट बात जो हमने आपसे कही थी वो ये थी कि केमिकल फॉर्मूला is used to represent compounds. इसको यूं कह देते हैं कि symbol is for atom which represent element. Formula is for group of atoms which is also called molecules, and it is for both element and compound. This is an important concept. Symbol is only for element and it's always represent a single atom. Already talked about it. But formula is for both element and compounds because it represents group of atoms. So how it can represent element then? Because sometime if group of atoms are made by same element, then it is like if I write H2. Now it is group of two atoms as it is written, and both atoms belongs to the same element, that is H, hydrogen. So then it is called molecule because it is group of atom. Because मैंने ऊपर लिख दिया, if you have single atom then it is atom and it can be represented by symbol. But if you have more than one atoms combined together, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप हो तो we may call it molecule as well. और अब अगर वो उस molecule में जो भी एटम है वो सब एक ही एलिमेंट के हों तो फिर वो ग्रुप ऑफ एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है और इट बिलोंग्स टू एन एलिमेंट. अब जैसे ये दो एटम्स का ग्रुप है मगर दोनों का ताल्लुक हाइड्रोजन से है. इसी तरह एक मॉलिक्यूल ऐसे भी लिखा जाता है P4. इट मींस देयर आर फोर एटम ग्रुप and all four belongs to phosphorus. So ये phosphorus का molecule है and it's an element. Even you can write it like this. There is a molecule in which 8 atoms are present and all of them are sulfur. So if the group of atom consists of single element, same element, then it is molecule, but it is molecule of an element. But if your group of atom contains different elements. So if I have two atoms group, but they both belongs to different element, like HCl. Now it is a molecule. It consists of one atom of hydrogen, one atom of chlorine, and since there are two different elements
forming this group, it is compound molecule. Same, if I write H2O, now there are 3 atoms, 2 hydrogen, 1 oxygen. The important thing is there are 3 atoms belongs to 2 different elements. You and I quote this example last time as well. C6H12O6 glucose molecule. It contains 24 atoms, 6 carbon, 12 hydrogen, 6 oxygen, and they belongs to 3 different elements. So definitely it's a molecule and it's a compound molecule. So it means if you have a group of atoms, first of all, it is molecule. If this group of atom contains same element, it's molecule of element. If it contains more than one type of elements indicated by their symbols, then it is compounds molecule. So molecule may be of element and molecule may be of compound, and molecule is represented by formula. So this kind of notation where I use number and symbols together is formula. Single symbol is for element, and this kind of things are is for molecule, whether for element or compound. That's a very very basic things. मगर जैसे कि मैंने कहा आपसे, the beauty of the CIE paper which you missed last time, ये सही है कि everybody will think that is a very good opportunity for us that without exam हम सब पास हो गए, उससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन अभी वो शायद उस वक्त थोड़े से हालात ख़राब हों जब किसी को लगे कि हमारा प्रेडिक्टेड ग्रेड जो है वो थोड़ा कम हो गया है, अगर हम पेपर दे देते तो ज़्यादा होता, हमारा वो तो बहस चलती रहेगी। तो पॉइंट मेरा ये नहीं है अबाउट द रिजल्ट, मेरा पॉइंट है द एक्सपोजर ऑफ एग्ज़ाम। अनफॉर्चुनेटली आप उस एक्सरसाइज से नहीं गुजरे जो उनके एग्ज़ाम का तरीका है, नॉट इवन इन दी स्कूल, क्योंकि जब आपके प्रीलिम्स का टाइम आना था तो ये सब कुछ शुरू किया। तो ये एक जो होता है ना कि एक्सपीरियंस ऑफ पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपका नहीं हुआ है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस साल जितना भी बन पड़े आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर कराएं, बिकॉज पेपर का पैटर्न, अंदाज, किस तरह जवाब लिखना है, कितनी बात लिख देना काफ़ी है, क्या चीज़ अननेसेसरी है, ये छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है बिल्कुल ये इतना बेसिक है कि अगर हम अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हम क्लास 8 में भी जो साइंस पढ़ाते हैं उसमें ये चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली आपने भी इस अगर 8 में नहीं तो 9th में और 10th में तो लाजमन पढ़ा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम पेपर उठाएंगे तो विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज थिंग्स एज वेल। यानी ये मॉलिक्यूल का एलिमेंट का है, ये कंपाउंड का, इससे भी इम्तिहान में क्वेश्चन आए हैं। तो ये बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि बस ये तो गुजारा हो गया। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत 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 अहम चीज़ जो मेरे पूरे पूरे सिलेबस को समझो हाथों में लेकर बैठी हुई है, वो अब हमें पढ़नी है। हम बहुत सारे, हमारे तकरीबन हर टॉपिक में न्यूमेरिकल है, और जहाँ केमिस्ट्री में हम न्यूमेरिकल करेंगे ये बहुत आसान सी मगर बहुत अहम सी चीज़ हमारे काम आएगी। ये क्या है? सबसे पहले छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशन, फिर आ जाएगी वो बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक टर्म विच इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम इस सिंबल से लिखते हैं। थोड़ी देर के लिए लफ्ज रिलेटिव भूल जाते हैं, इसे पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब हुआ मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास का मतलब हुआ मास ऑफ एन एटम। अब आया क्वेश्चन, जाहिर सी बात है एटम को आपने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ द मैटर, सो इट मस्ट हैव सम मास। कितना? नाउ हियर कम्स आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन अब बहुत जरूरी है। हम एटम को क्या समझते हैं? एवरीथिंग, एवरीथिंग, वेदर इट इज प्योर, इम्प्योर,
whether it is element, compound, everything जो कि matter है around us, it's made up of atoms. ये मैंने शुरू में आपसे कह दिया. Irrespective कि वो प्योर है, इम्प्योर है, वो एलिमेंट है, वो कंपाउंड है, वो मिक्सचर है, सब में एटम होते हैं इन डिफरेंट स्टाइल्स. एलिमेंट के लिए कहा था थ्रू आउट एक ही जैसे एटम. कंपाउंड और मिक्सचर में कहा कम से कम दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम अंदर होंगे. कंपाउंड में वो फिक्स रेशो के साथ जुड़कर ग्रुप बनाएंगे, मिक्सचर में वो तितर बितर होंगे, इरैंडमली होंगे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा. लेकिन एटम सब में है. कितने बड़े होते हैं ये एटम, कितना होता है इनका मास. जैसा हम कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप. इफ वी नो एनीथिंग अबाउट एटम प्रीवियसली, ओके दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम अपने टॉपिक्स में स्टेप बाय स्टेप चलते हुए जितनी ज़रूरत है उतनी बातें करेंगे. ये तो टॉपिक ऐसा है, इसमें बहुत सारी जितनी बातें. हमारा चैप्टर है पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का और शुरू में ही आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आराम से पढ़ते रहेंगे. लेकिन अभी बात ये हो रही है कि आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है, ये बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसका मास बहुत ही कम होगा. बहुत कम का मतलब इतना कम कि आप सोच नहीं सकते, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते. तो अभी फ़िलहाल सोचिए बहुत ही कम है. तो मसला क्या है भाई? मसला ये है कि जब आप चीज़ों को मेजर करते हैं तो यू नीड यूनिट्स, and you always choose unit according to the value of that particular quantity. सोचिए ना, there are many units of time, है ना. सेकंड भी टाइम का यूनिट है, मिनट भी टाइम का यूनिट है, आवर भी टाइम का यूनिट है, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, सेंचुरी, ये सारे टाइम यूज नोट करने के लिए आते हैं ना काम. और मैं और आप तो छोड़ दीजिए ना, थोड़े पढ़े लिखे हैं शायद, जो बिल्कुल नहीं है पढ़े लिखे, इलिटरल लोग, समझे, चौकीदार है हमारे कॉलेज स्कूल का, आप उससे भी क्वेश्चन करेंगे ना अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम, तो वो आपको बेहतरीन किस्म के अंदाज से सही यूनिट के साथ बताएगा. मसलन आप उससे पूछ लें तुम्हारी एज क्या है, तो वो आपको अपनी एज हमेशा ईयर्स में बताएगा. उसका यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? ईयर्स में. कहेगा मैं 54 ईयर्स का. क्या वो ये एज बताते वक्त वो या कोई भी बंदा, चाहे वो जितना इलिटरल हो, आपको कभी एज मिनट्स में बताएगा, सेकंड में बता दे, इवन मंथ में बता दे, नो, ईयर्स में बता दे. अच्छा, उस स्कूल के चौकीदार से आप पूछेंगे स्कूल कितनी देर के लिए खुलता है, एक दिन में कितनी देर के लिए खुलता है, क्या अब वो आपको टाइम जो बताएगा वो ईयर्स में बताएगा? नहीं, वो कहेगा 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए. चलो इंग्लिश में उर्दू में बताएगा 5 घंटे के लिए. घंटे, इसका मतलब है एकदम से उसने टाइम का यूनिट आवर्स कर दिया. तो इसका मतलब उसे भी सेंस है कि जब बड़ा टाइम बताना है तो उसके हिसाब से बड़ा यूनिट, जब छोटा टाइम बताना है तो उसके हिसाब से छोटा यूनिट. अगर उसे ये बताना है कि मैं अभी मूव होके आ रहा हूँ तो अपने साथी से कहेगा 2 मिनट में आ रहा हूँ, अब एकदम से यूनिट हो गया 2 मिनट, तो उसने मिनट भी यूज़ करना जानता है, उसे पता है कब मुझे मिनट यूज़ करना है, कब आवर्स यूज़ करना है, कब डेज यूज़ करना है, कब ईयर्स यूज़ करना है. तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है फॉर एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड. साइंस की चीज़ें ज़रा ऐसी होती हैं कि वो बहुत सारी ऐसी हैं जो नॉर्मल लाइफ में इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन हम इसी हिसाब से यूनिट यूज़ करते हैं. तो अब चूंकि मुझे एटम का यूनिट यूज़ करना है जो कि बहुत ही छोटा है, तो फिर यूनिट कैसा होना चाहिए? बहुत ही छोटा. अच्छा, आमतौर पर मास यूज़ किया जाता है किलोग्राम में, उससे छोटा यूनिट है ग्राम, उससे छोटा यूनिट है मिलीग्राम, उससे छोटा यूनिट है माइक्रोग्राम, उससे छोटा यूनिट है नैनोग्राम. मेरा ख्याल में यहाँ तक शायद हम लोगों ने सुना, इसके भी नीचे होते हैं पिकोग्राम वगैरह और फर्मीग्राम, लेकिन जो हमने सुने हुए हैं मैं उनकी बात करूँ. तो ये सारे यूनिट एटम के लिए बड़े हैं, एटम इससे भी छोटा है. तो हमने कहा फिर एटम के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया जाए. पहला काम हो गया, एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जो एटम के अलावा और किसी की चीज को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, स्पेशली यूज फॉर एटम. एक बात. फिर दूसरा काम हमने ये किया कि इन ऑर्डर टू मेजर
the mass of an atom, we use the trick of comparison. हमने कहा हम एटम के मासेस को एक दूसरे से कंपेयर करके मेजर करेंगे। तो फिर ये लफ्ज रिलेटिव आ गया। जब भी आप किसी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करके बताते हैं तो वो कहलाती है रिलेटिव। आपसे किसी ने पूछा आपके इम्तिहान में कितनी परसेंटेज आई थी, आपने कहा 84, दिस इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, आपने बता दी 84। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे पूछी जाए आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, तो आप अपने बराबर वाले बच्चे की तरफ इशारा करके कहें इससे 2% ज़्यादा थी। ये जो तरीका बताने का है जिसमें आपने अपनी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई, आपने अपने बराबर वाले बच्चे से कंपेयर करके बताई। अब उस बराबर वाले बच्चे की परसेंटेज मुझे मालूम थी तो मुझे पता चल गया आपकी कितनी होगी। तो ये अंदाज बताने का जिसमें आप किसी से कंपेयर करके वैल्यू बताएं वो कहलाती है रिलेटिव हर चीज में। और यहाँ हम एटॉमिक मास बता रहे हैं तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। सवाल ये पैदा हुआ किससे कंपेयर करेंगे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइंटिस्ट यूज मेनी स्टैंडर्ड्स। उन्होंने सबसे पहले ये किया कि हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है मास के लिहाज से। जो सारी एटम बहुत छोटे हैं उनमें भी सबसे नन्हा जो है वो हाइड्रोजन है। सो दे कंसीडर हाइड्रोजन एक्स। उन्होंने हाइड्रोजन को कंसीडर किया 1 और उससे कंपेयर करके सारे एलिमेंट्स के मास निकाल दिए। तो उस सूरत में हमारी डेफिनेशन बनी मास ऑफ एन एटम as compared to 1 atom of hydrogen. So if I say that the atomic mass of carbon is 12, then it means 1 atom of carbon is 12 times heavier than hydrogen atom. ये हुआ तरीका। अगर कोई ये कहे कि ऑक्सीजन के एटम का मास 16 है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 16 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये बना। लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ ऐसी आई कि हमें हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ा। वो गड़बड़ हम आपको बाद में बताएंगे। वो अगर हो सकता है आपने नाम सुना हुआ हो, वो थी आइसोटोप। हाइड्रोजन के अंदर आइसोटोप्स आने की वजह से हमने हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड को हटाया। अब जिस स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं वो है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक मास हमने कंसीडर किया है 12 और अब कहा है इससे हर एक को कंपेयर करेंगे। इससे हर एक को कंपेयर करेंगे का क्या मतलब, इफ कार्बन एटम इज 12 तो फिर कार्बन के एटम को अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना बनेगा 6। कार्बन के एटम को डबल कर देंगे तो कितना बनेगा 24। ये होगा हिसाब। कार्बन के एटम के 12 पार्ट्स कर देंगे तो हर पार्ट 1 के बराबर होगा क्योंकि कार्बन अकेला 12 के बराबर है। तो डेफिनेशन बनी मास ऑफ एन एटम as compared to 1/12th part of an atom of carbon। अब चूंकि ये डेफिनेशन भी आपको याद नहीं करनी है, ये डेफिनेशन आपको सिर्फ देखनी है कि अमूमन वो ये डेफिनेशन पूछते नहीं हैं। इस डेफिनेशन को गिवन देकर पूछते हैं ये सही है या नहीं। मिसाल के तौर पर अब वो आपको यूं एमसीक्यू दे सकते हैं कि एटॉमिक मास इज दी मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू दी एटम ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू दी एटम ऑफ फला एज कंपेयर टू दी 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एक सही देंगे बाकी सारे गलत। तो बस अब आपको ये याद रखना है कि हम जहाँ भी रिलेटिव एटॉमिक मास इस्तेमाल करेंगे ये एटॉमिक मास एटम का मास है और इसको हमने कार्बन के एक एटम से कंपेयर करके बनाया है। चूंकि कार्बन के एक एटम का मास 12 लिया जाता है इसलिए हमने कहा है कि दिस इज द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। तो इसे हम किस तरह लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय AMU। ये पूरा तरीका है एटॉमिक मास यूनिट और सिर्फ स्मॉल यू। तो एक तरीका पूरा
एब्रीविएशन लिखना है AMU विच इज़ फॉर एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा तरीका है सिर्फ छोटा सा u बना देते हैं, तो दिस इज फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हर एटम का मास हमने कार्बन के एटम के मास से कंपेयर करके निकाला और हमारे पास आ गए रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस तरह मैंने कहा डेफिनेशन सिर्फ सुननी थी, समझनी थी, इसी तरह अब ये जो हर एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास है, इससे हमें बहुत सारे काम लेने हैं। मैंने जैसे अभी कहा हर न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर लास्ट, हर न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये यूज होगा और इसकी वैल्यू गिवन होगी। आपको किसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास के रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा पेपर 1 में और पेपर 2 में, पेपर के साथ हमें पीरियोडिक टेबल मिलता है। उस पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स गिवन होते हैं और उसी में उनका मास भी गिवन होता है। सो एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास सारे एलिमेंट्स का हमें गिवन होगा और हम जब जिस न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत होगी हम उस न्यूमेरिकल में इसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि तब हम ये करेंगे कि हम आपको एटॉमिक मास बताएंगे और आप उसके हिसाब से अपना सवाल सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपके सामने एक लिस्ट लिख रहा हूँ। ये उन एलिमेंट उन रिलेटिव एटॉमिक मासेस की लिस्ट है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अच्छा, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ये आपको याद करनी है। पेपर 4 में पीरियोडिक टेबल नहीं मिलता तो उसमें जिस क्वेश्चन में जिस रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत होगी वो क्वेश्चन के साथ लिखना होगा। तो इसका मतलब है अंडर नो सर्कमस्टांसेस आपको किसी भी AR वैल्यू को याद करना है, ठीक है। सो सम इम्पॉर्टेंट जो तकरीबन 14-15 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके AR वैल्यूज बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे। उस फ्रीक्वेंटली यूज करने की वजह से हमें याद हो जाएंगे तो ये और बात है, अदरवाइज ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि प्रोबेबली हो सकता है आपके पास हर वक्त पीरियोडिक टेबल ना हो, तो जिस कॉपी में भी आप लिखेंगे उसमें ये रहें। इवन देन भी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर फर्ज कर लें किसी के पास नहीं होगा, फौरन बता देंगे। सो दीज लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट AR वैल्यूज। तो इसमें हाइड्रोजन इट्स 1, हर एक का यूनिट यही है जो मैंने ऊपर लिखा है, AMU लिखेंगे या छोटा सा U लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, phosphorus 31, sulfur 32, chlorine 35.5, potassium 39, calcium 40, iron 56, and copper 64. So this is a list of 16 common elements which we're gonna use more very frequently. So ये आपके पास लिखी हुई हो, और अगर नहीं लिखी हुई है तो हम खैर बताते भी रहेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होगा। या तो ये आपके सामने हो या हर वक्त पीरियोडिक टेबल आपके सामने हो। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के नाम और सिंबल्स के साथ ये है। बस वहाँ वो ये मसला है कि
ओवर 118 एलिमेंट्स में से आप अपना पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढेंगे और देखेंगे उसका एटॉमिक मास क्या है। यूज कहाँ है इसका, ये तो आपने बता दिया है, हर एटम का कुछ ना कुछ मास होता है, वो ये है, एंड दिस इज रिलेटिव। ओके, इसका इस्तेमाल होता है यहाँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये कहलाता है MR। ये क्या चीज है भाई, ये चीज है कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई कि एटम्स के ग्रुप को मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। उसका मास कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, जिन एटम्स ने ग्रुप बनाया है उन एटम्स के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस ऐड कर दीजिए, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। यानी अगर फर्ज कर लीजिए एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, उन दोनों एटम्स का एटॉमिक मास ऐड करें, मॉलिक्यूल का मास, बिल्कुल सही है ये बात। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से मुराद है सम ऑफ एटॉमिक masses of atoms present in molecule is called relative molecular mass और इसे कहते हैं MR वैल्यू। अब हमें फॉर्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले में मेंशन होगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और किस किस एलिमेंट के हैं। हमें सिंपली उन्हें ऐड अप करना है, एटॉमिक मासेस को उनके मॉलिक्यूल का मास आएगा। बहुत आसान काम है और आप करूँगा तो आपको याद भी आ जाएगा, डेफिनेटली आपने इसे लास्ट ईयर भी किया है। मसलन एग्जाम्पल नंबर 1, CO2। Now this formula give you the information that this particular compound or molecule, it contains two elements, carbon and oxygen. The second information is there is one atom of carbon and two atoms of oxygen. So I have to add their atomic masses. The atomic mass of carbon, as it is being written here, is 12, and atomic mass of oxygen is 16. So when I use these two values here, तो मैं कहूँगा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है एंड कार्बन इज 1 टाइम्स, तो ये हो गया 12 1 से 12। ऑक्सीजन एटम इज 16 एंड इट इज 2 टाइम्स, तो दिस बिकम्स 32। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो दिस इज 44। AMU लिखूं या सिर्फ U लिखूं, 44 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो तरीका मैंने आपके सामने रखा है इस CO2 के मॉलिक्यूल को कि MR वैल्यू निकालने का, ये सिर्फ ये बता रहा है कि in order to evaluate the value of MR, one should add every atomic mass of every atom present in the molecule। ये नहीं कह रहा कि इसी तरह से करें जैसे सर ने किया, बिकॉज दिस वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये इतना सिंपल और माइनर सा काम है कि आप ये निकालने के लिए किस अंदाज की वर्किंग करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अब ये जितना सिंपल और छोटा मॉलिक्यूल है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे तो यूं कर रहे हों, इवन दिमाग में ही निकालने बगैर कोई कैलकुलेशन के, और कुछ यूं करें कि ये 12 हो गया, यूं कार्बन के साथ करें 12 प्लस ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 44, तो ये भी चलेगा। मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं कि आपने कितने रफ तरीके से किसको किया है, नजर भी नहीं आ रहा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये जस्ट मैंने आपको एक मेथड बताया, कि एक वक्त तो एक ही बताऊंगा ना। अब आप इसको फॉलो करें या आप वर्बली निकाल लें, बिकॉज योर क्विक मैथ्स इज वेरी गुड, मुझे कोई एतराज नहीं। आई नीड दिस आंसर एग्जैक्टली और करेक्टली। अच्छा, ये ज़रूर है कि इन लेटर ऑन हम जिन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखेंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसमें ज़रा आइटम्स की तादाद और एलिमेंट्स की तादाद भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ हमारी ख्वाहिश होती है कि आदमी लापरवाही में गलती ना कर दे। छोटे मॉलिक्यूल तो चलो चांसेस कम है, लेकिन ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा आइटम, ज़्यादा एलिमेंट्स हों, तो वहाँ
कोई एक एटम भी मिस हो गया, उसका नंबर मिस हो गया, तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए केयर करनी है। उस वक्त अगर आप चाहें तो इस तरह का भी वर्किंग कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, और वेयर वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, हमें कोई मसला नहीं है। बट ये याद रखना है कि ये काम इंतहाई इंतहाई आसान है, but very 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 sensitive is in that sense कि mistake in MR value can spoil the whole question। तो this is very very important कि हमें इसमें कोई गलती ना करनी पड़े। बहरहाल this is very simple one example। एक और करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, this is my second example। now first of all आप जिस तरीके से करना चाहें आप करें, मैं समझाने के लिए ताकि एक चीज़ क्लियर हो, आई एम जस्ट लिस्टिंग दी एलिमेंट्स नेम्स। कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स आर देयर। और कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का भी एक है, ऑक्सीजन के 3 है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। और कैल्शियम का एटॉमिक मास आप बेशक देख भी सकते हैं, ये आएगा 40, कार्बन का है 12 एंड ऑक्सीजन का है 16। सो here I have 40, 12 and this is 48. When I add the contribution of all three elements, it becomes exactly 100 units. So what is now required? It is required कि अब आप और मैं कुछ आसान आसान से पहले सवाल करें, फिर ग्रेजुअली हम इन फॉर्मूलों को थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। Well, give you 2 minutes to just copy down this, ताकि अब जब मैं आपको सवाल दूं तो आपको ये ना हो कि वेयर आर दी एटॉमिक मासेस। इन्हीं एटॉमिक मासेस को यूज करके वी आर गिविंग यू सम फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट दी एमआर वैल्यू। सो प्लीज या तो पिक्चर ले लें ताकि आपके हाथ में मोबाइल में देख लें, या फिर इसे अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं तो क्योंकि लेके बैठना होगा, सवाल करने हैं तो इसे प्लीज कॉपी कर लीजिए। कैमरे ऑन कर दें अपने दोबारा ताकि मुझे नजर आए कि आप काम कर रहे हैं। ओके, अब आप साथ साथ करते जाएंगे। आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़बानी कर रहे हैं, आप मेरी तरह लिस्ट बना के कर रहे हैं, ये सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आई जस्ट नीड दी आंसर्स। तो आप करते जाएंगे और फिर हम आपको आंसर्स बताएंगे, हमें पता चल जाएगा। अभी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो अभी यही है कि आप सेल्फ चेक करेंगे अपने काम को और इत्मीनान हो जाएगा कि यस हम सही कर रहे हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, जो बच्चा करता जाए पांचों के पांचों, वो अपना हाथ रेस करेगा, हैंड रेस करेगा, और मैं फिर उससे जवाब पूछ लूंगा।
फर्स्ट सुबाल, बेटा प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए अपने जवाब। H2SO4 98 98, H3PO4 98 दैट्स इट। आपके दो जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुए, आपका काम खत्म। अब कोई इसके बाद वाले जवाब मुझे बताएगा। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर हैंड्स। Still waiting यार। Yes, Angela, please. अब तो ये लाइन लग गई है माशाल्लाह से। गुड एंजेला, पहले आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और MgSO4 बताइए। 104 AMU नॉट 104। तो ये अगर आपने जवाब दिया है तो आई गेस ये गलत है, कहीं गलती कर गई आप। आई थिंक आप ऑक्सीजन के एटम्स पूरे नहीं गिन पाए हैं। तो वेल, माय आंसर क्वेश्चन इज फॉर सैयदा मासूमा। प्लीज आप मुझे बताइए द राइट आंसर ऑफ MgSO4। 120 कितना बेटा? 120 जोर से बोलिए। 120 सर। 120, दैट्स द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, हमारे इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिनका सही हो रहा वो तो है, जिनका नहीं सही हो रहा वो इससे भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वाई? बिकॉज नाउ दे कैन रियलाइज कि फॉर सच एन ईजी वर्क मे बी हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, हम ने ओवर कॉन्फिडेंस होकर गलती की। आई गेस यहाँ 16 कम हो रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने ये ऑक्सीजन के 4 की जगह शायद 3 एटम्स लिए हैं। तो प्लीज चेक योर मिस्टेक एंड इसको फिर नेक्स्ट के लिए अच्छा रखिएगा। जैनब से अब मेरा क्वेश्चन है, जैनब अतीक प्लीज मुझे बताइए अब की WH। 60 वेरी गुड, it is 60. And for the last one, Aisha Irfan, 180 so just make sure कि yes आप सब ने ये काम खुद किया है। and too many hands जो रेज हुए हैं, I'm very happy। प्लीज अब इसे नीचे रखें। बहरहाल इत्तेफाक की बात है, ये सारी खवातीन गर्ल्स से मैंने पूछ लिया, लेकिन जो लड़के हैं वो दिल छोटा ना करें, उनसे अब अगली दफ़ा बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये तो हैं बहुत ही सिंपल वाले। अच्छा, इन सिंपल वालों के क्योंकि मैं चुन चुन कर सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करवाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वी हैव 40 मिलियन कंपाउंड्स, सबकी MR वैल्यू होगी, ये थोड़ी हम बैठे हुए करते रहेंगे। जो हमारे सिलेबस में हमसे बार बार इंटरेक्ट होंगे, जिनकी हमें अपने सिलेबस में बार बार ज़रूरत पड़ेगी। एक फ़ायदे की बात पता है क्या उसमें, ये कि हमारा फेमिलियरिटी जब उससे हो जाएगी ना, खासतौर पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल दूसरी दफ़ा निकालेंगे, तीसरी दफ़ा, तो ये CH3COOH इथेनॉइक एसिड कहलाता है, हम इसका मॉलिक्यूलर मास याद हो जाएगा। तो एक होता है ना जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है कि बच्चे को इतना होता है कि अभी तो 60 था, वो जस्ट एक क्विकली एक ग्लास देता है कि हाँ हाँ वही है, ठीक है, तो टाइम बचता है। ये मुझे इम्पोर्टेंट है कि जब हम फालतू किस्म के सवाल करने बैठ जाएंगे ना, जिनका हमें पता है ये मॉलिक्यूल तो कभी आएगा ही नहीं, तो वो तो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है ना फिर। तो ये कॉमन मॉलिक्यूल्स पर बात बहुत होनी है। इसका फेज 2 सुनिए। अब फेज 2 ये है कि अब हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देखें जिनके फॉर्मूले लिखने में हम थोड़ी सी ट्रिक करते हैं। मिसाल के तौर पर a formula where we use brackets,
व्हाट दैट मींस, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट, व्हाटएवर द नेम इज, अभी उससे कोई कंसर्न नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है SO4 और बाहर लिखा हुआ है थ्राइस, तो ये थ्राइस SO4 में मौजूद सल्फर ऑक्सीजन दोनों के लिए। सो ये 3 जो है ये इस 4 से भी, और सल्फर के नीचे इसका मतलब है 1 है, उससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है, और एल्यूमिनियम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो इसमें एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम जिसके 2 एटम है। नाउ सल्फर के कितने हैं? सल्फर अंदर 1 है और बाहर थ्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब है देयर आर 3 एटम्स ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन अंदर 4 है, बाहर थ्राइस लिखा है, तो 4 3s are 12 ऐसे लेंगे। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में देयर आर SO4, there are SO4 which are 3 times and there are 2 atoms of aluminium। अब हमारा यूजुअल तरीका है, आप अपने चार्ट से चेक कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। सो 2 times 27 is 54, 3 times 32 is 96 and 12 times 16 is 192। So this becomes 342U। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2 या 3 मॉलिक्यूल, ज़्यादा नहीं, जिनमें ऐसे ब्रैकेट आते हैं करके रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम यानी कि कल ही हम सबसे पहले आपसे उसी के बारे में पूछेंगे। तो द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज, इसी से मिलता जुलता, Al2C2O4 taken thrice, Fe2SO4 taken thrice, NH4 taken thrice, PO4। इन सारे एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास अभी भी लिखे थे, बुक में भी आराम से मिल जाते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। सो ये आप होमवर्क से करेंगे। यहाँ हम अब आज का लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर इसी 3 एग्जाम्पल से हम कल दोबारा इसे रिज्यूम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।